Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Now we'll discuss latest exam question paper. This is a question from TYBCom November 2018. Mr. Aniket furnish you the following particulars of his income earned by him during the previous year ended 31st March 2020. Compute his total income for the assessment year 2020-21, assuming he is resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident. मतलब तीनों स्टेटस के लिए कंप्यूटेशन करना है. Our name of assessor Mr. Aniket, legal status individual, assessment year 2020-21, previous year 2019-20. तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने वहां पर लिखे हुए सॉल्यूशन में. So we'll read from there itself. Income from business in Delhi, control from London. बिजनेस कहाँ पर है? दिल्ली में है, मतलब इंडिया में है. बिजनेस कहाँ पर है? दिल्ली में, मतलब इंडिया में है. कंट्रोल बाहर से हो रहा है, बट बेसिकली बिजनेस इज इन इंडिया. सो इनकम अराइजेस इन इंडिया. It is taxable for all the three status. So taxable for ordinary resident, not ordinary resident, as well as non-resident being the Indian income. ये Indian income है, which is taxable for all the status. Interest on debentures of Indian company received in Japan. इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर्स पर. डिबेंचर्स कौन सी कंपनी का है? इंडियन कंपनी का है, मतलब इनकम अराइजेस इन इंडिया. सो अगेन इट इज इंडियन इनकम बीइंग टैक्सेबल फॉर ऑल द स्टेटस. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फ्रांस रिसीव्ड इन मुंबई. प्रॉपर्टी फ्रांस में है, लेकिन इनकम रिसीव्ड कहां पर हो रहा है? मुंबई में. दैट मींस इन इंडिया. सो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगेन इट इज अ इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री स्टेटस. इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट्स इन दुबई. अकाउंट्स दुबई में है, मतलब इंटरेस्ट भी दुबई में मिला होगा. इट्स बीइंग फॉरेन इनकम. इट इज टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट and not taxable for not ordinary resident and non-resident. So foreign income is taxable only for ordinary resident, not taxable for not ordinary and non-resident. Income from agriculture in Sri Lanka. एग्रीकल्चर इन इंडिया होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होता, तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होता, नॉट टैक्सेबल होता. लेकिन ये एग्रीकल्चर कहाँ का है? श्रीलंका, आउटसाइड इंडिया. So it is a foreign income which is taxable for ordinary resident, not taxable for not ordinary as well as non-resident. Income from business in Nepal, that is outside India, control from India. So income from business outside India, control from India, again it's a foreign income. It is taxable for resident, taxable for resident and not taxable for non-resident. So taxable for resident and not taxable for non-resident. Salary earned and received in Singapore. Salary earned and received in Singapore. So it is a foreign income. Arise भी outside India हो रहा है, received भी out of India हो रहा है. तो ये foreign income है. That is taxable for ordinary resident and not taxable for not ordinary resident as well as non-resident. Past untaxed profits earned in UK brought to India during the previous year. एक तो ये पिछले साल का प्रॉफिट है, मतलब प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले कुछ सालों का ये प्रॉफिट है यूके में कमाया हुआ, जो हम लोग इंडिया में लेकर आ रहे हैं. दैट मींस व्हाट? मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आफ्टर इट्स फर्स्ट रिसिट. तो इसका मतलब ये क्या है? सिर्फ रेमिटेंस है, इनकम नहीं है. इट इज रेमिटेंस ओनली, नॉट एन इनकम. तो अगर ये इनकम नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा? टैक्सेबल नहीं होगा. अगर ये इनकम नहीं है तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट एन इनकम. दिस इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रेमिटेंस ओनली. यहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टोटल इनकम आ रहा है 12,60,000, whereas for not ordinary resident टोटल आ रहा है 8,20,000 and for non resident टोटल आ रहा है 6,60,000. Hope you have understood this question. Next question from TYBCom October 2019 ATKT paper.
Mr. Shekhar has earned the following income during the previous year ended 31st March 2020. Compute his total income for the assessment year 2020-21, assuming he is resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident. मतलब तीनों स्टेटस के लिए कैलकुलेट करना है. ये 8 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं. असेसी का नाम है मिस्टर शेखर. प्रीवियस ईयर है 1920, असेसमेंट ईयर होगा 2021. So name of the assessee Mr. Shekhar. Legal status individual. Assessment year 2020-21. Previous year 2019-20. तीनों स्टेटस के लिए कैलकुलेशन करना है. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए पूरे दुनिया भर का इनकम टैक्सेबल होता है. नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता है. एंड फॉर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता. लेकिन जो फॉरेन इनकम टैक्सेबल होता है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सिंगापुर. प्रॉपर्टी कहाँ पर है? सिंगापुर में. मतलब ये फॉरेन इनकम हुआ. तो फॉरेन इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल, बाकी दोनों के लिए नॉट टैक्सेबल. इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट्स इन इंडिया. अकाउंट्स कहाँ पर है? इंडिया में है. सो इनकम अराइजेस इन इंडिया, इंडियन इनकम हुआ. इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द 3 स्टेटस. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश, दैट इज आउटसाइड इंडिया. कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से कंट्रोल हो रहा है. सो इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. इट इज अ फॉरेन इनकम विच इज taxable for resident, taxable for resident and non-taxable for non-resident. Taxable for resident, taxable for resident and not taxable for non-resident. Fees received in UK for services rendered in India. फीस मिला है यूके में, मतलब आउटसाइड इंडिया, लेकिन सर्विसेज जो है वो कहाँ पर हुआ है? इंडिया में हुआ है. तो अगर आपको एग्जाम में समझो कंफ्यूजन लगता है कि मैं क्या लिखूं, इंडिया इनकम अराइजेस इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू बी अराइजेस इन इंडिया, सो बेटर ऑन सेफर साइड यू राइट इंडियन इनकम, बिकॉज इनकम अराइजेस इन इंडिया ये भी इंडियन इनकम है. इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया ये भी इंडियन इनकम है. एंड इन बोथ द केसेस इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द 3 स्टेटस. सो इन एग्जाम इफ यू गेट कंफ्यूज्ड व्हाट टू राइट, सेफर साइड राइट इंडियन इनकम. So being the Indian income, it is taxable for all the 3 status. If you want to know more about the income arises, deemed to be arises in India, watch our first part of this scope of total income series. Income from agriculture in Japan. अगर agriculture in India होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते exempt under section 10 subsection 1. तो ये exempt होता, not taxable होता for all the 3 status. बट एग्रीकल्चर लेकिन कहाँ पर है? जापान में, मतलब आउटसाइड इंडिया. सो इट्स अ फॉरेन इनकम. फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाकी दोनों के लिए नॉट टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम दुबई. बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में. बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? इनकम अराइजेस इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू बी अराइजेस इन इंडिया, कुछ भी लिखूँ तो ये इंडियन इनकम है. इंडियन इनकम है, it is taxable for all the 3 status. So on safer side you can write Indian income which is taxable for all the 3 status. Commission from Indian company received in Japan. Commission from Indian company received in Japan. तो कमीशन भले जापान में मिला है लेकिन किससे मिला है? इंडियन कंपनी से. So source is in India. It is an Indian income taxable for all the 3 status. Taxable for all the 3 status. Past untaxed profits earned in Germany brought to India during the previous year. Past untaxed profit earned in Germany brought to India during the previous year. पहली बात तो ये इस साल का प्रॉफिट नहीं है. इट इज अ पास्ट प्रॉफिट, मतलब ऑलरेडी रिसीट हो चुका है, उसका फर्स्ट रिसीट हो चुका है, मतलब इनकम हो चुका है. अभी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहा है? मनी इज ओनली ट्रांसफर. So money is transferred from one place to another, which is nothing but remittance only, not an income. अगर वो इनकम ही नहीं है तो वो क्या नहीं होगा? किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा. किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा. So overall, for all this transaction,
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टोटल इनकम आ गया 9,80,000, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टोटल इनकम आ गया 6,60,000 एंड फॉर नॉन रेसिडेंट इनकम आ गया 5 lakhs. Hope you have understood this question. बढ़ते हमारे इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन में. This is a question adopted from November 2019 paper. Mr. Siddharth has entered the following income during the previous year ended on 31st March 2020. Compute his total income for the assessment year 2020-21, assuming that he is a resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident. ये तीनों स्टेटस के लिए कैलकुलेशन करना है. ये तीनों स्टेटस के लिए कैलकुलेशन करना है. So name of the assessee Mr. Siddharth, legal status individual, assessment year 2020-21, previous year 2019-20. पहला ट्रांजैक्शन है इनकम अक्रूड इन फ्रांस रिसीव्ड इन इंडिया. इनकम जनरेट भले आउटसाइड इंडिया हो रहा है लेकिन रिसीव्ड कहां पर हुआ है? इंडिया में हुआ है. सो नेचर ऑफ इनकम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री स्टेटस. टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री स्टेटस. Income from business in USA, control from India. Income from business in USA, control from India. Business India के बाहर है, India से कंट्रोल हो रहा है, तो ये फॉरेन इनकम है. But this foreign income is taxable for resident, taxable for resident, and not taxable for non-resident. So taxable for resident and not taxable for non-resident. Profit of a hotel business in South Africa, that is outside India. Also control from South Africa, it is control outside India. ये पूरी तरह से फॉरेन इनकम हुआ. This income is taxable only for ordinary resident, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. Past non taxable income brought to India, लिखा है past non taxable income. Past income मतलब इसका रिसीट ऑलरेडी किसी प्रीवियस ईयर में हो चुका है अदर देन द प्रीवियस ईयर 1920. मतलब फर्स्ट रिसीट इज ऑलरेडी अकर्ड और अभी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस इज रेमिटेंस ओनली, नॉट एन इनकम. तो ये इनकम नहीं होगा, दिस इज ओनली अ रेमिटेंस. तो ये इनकम अगर नहीं है तो इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री केसेस. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ हाउस इन मुंबई. रेंट मिल रहा है प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी कहां पर है? मुंबई में है. सो इनकम अराइजेस इन इंडिया. इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री केसेस. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस इन मुंबई, तो प्रॉपर्टी बिजनेस कहां पर है? मुंबई. बिजनेस कहां पर है? मुंबई में. अगेन इनकम अराइजेस इन इंडिया. इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री स्टेटस. सो फ्रॉम ऑल दिस ट्रांजैक्शन टोटल इनकम फॉर रेसिडेंट and ordinary resident is 2,17,000. Total income for resident but not ordinary resident is 1,87,000 and total income of non-resident is 1,55,000. Hope you have understood this all the three questions thoroughly. अगर आपको provisions के बारे में ज्यादा जानना है तो watch our first episode of this series, and if you want to know more about the residential status, how it is determined, तो हमारे पास एक series है, series called a series of residential status. You should go through all the 6 parts of that residential series. Thank you very much. Thanks for watching. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.